Welcome everyone to online employability training program organized by Association of Muslim Professionals. And I see that more than 90 people have already joined in. So we'll be starting our session with a tilawat Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Thank you, everyone. I would now request Mr. Iftikhar Bidkar, who's Head of Employment Assistance Cell, Association of Muslim Professionals, AMP, to please host this session. Thank you. Thank you very much. I, Tikar Bilkar, welcome you all for our first online employability training program arranged by Association of Muslim Professionals. As all of you know, the Association of Muslim Professionals was founded by a group of professionals in the year 2007, and this is our 12 years of helping the nation and the community to grow. So here today I'll take you a short presentation on the EAC, what Employment Assistance Cell does. So can you take it to the directly assigned to the Employment Assistance Cell start, right? Next slide. Okay. So as AMP works on the different category itself. So one of them is the three E's which we work is education, employment, and empowerment. And AMP has a core objective of helping the underprivileged, promoting and creating economic empowerment for the community also and to the other communities also. And then we are a non-political, non-security organization. So all our uh, events and everything are open to all religion. We don't discriminate on the basis of caste, religion, or creed. Next, next slide. So what AAC consists of? AAC consists of actually a broader level. If you say it is of four five things. One is the job fair. So job fairs are nothing but a platform where we do events like big job fairs where we invite companies from various sectors and the candidates visit this particular job fair. So we have till now arranged more than 42 job fairs, physical job fairs I can say. And during this pandemic, actually looking at the current pandemic, the situation, so we have arranged our first online job fair for Mumbai MMR region a couple of weeks back, which was a huge success. Around 2,500 plus candidates applied for the job. And Alhamdulillah, we are hopeful that the maximum of the people will get the job. And then we had around 4,400 plus open vacancies. So we have tie-up with various companies, various corporates, both national and international corporates. Plus, we have a tie-up with a lot of HR consultancies and above, which we invite them to our job fairs, whether it is physical or online. Go to the job drive part. So job drive is nothing but a smaller version for job fair, where we normally do this stuff at the tier two or tier three cities where we cannot invite a large number of corporates. So we invite around three, four corporates to the regular cities, and we do it across tier two cities. Take it to the ATP level. These are a few of the photos which you can see. I think today we are doing this particular ATP program, employability training program. So this is first time we are doing it online. Previously, we used to do everything physical events, and we used to do for across colleges and for the final year students, so that they can we help them to find the right job at the right place at the right time, and we prepare them. So our trainers, our volunteers or the trainers are exceptional corporate trainers, which
devote their time to helping the community. And today we have one of them with us. So these are few of the photos of ATP, which is arranged across the colleges in India. And these are some other projects of employment assistance that we do it. So I request Shehzad to introduce Bushra ma'am and start the ETP presentation. Thank you so much, Iftikhar bhai. So let me introduce you all to the speaker of the day, Professor Bushra Ansari. She's completed her master's in management studies with specialization in human resource from University of Mumbai. She is mentor, motivational speaker, and soft skill trainer. She's got over 8 years of experience in corporate HR, teaching in MBA colleges and hotel management colleges. I would now request her to please take this session from here on. But before she starts a session, I would like to request all the attendees that if you have any question for this session, you can raise those questions using Q&A section, which is right on below on your screen. And all the questions will be addressed at the end of the session, not in between the sessions. And please ask only those questions which are related to the topic. Do not ask anything beside the topic. We will not be entertaining any of your messages or questions which will be raised through chats, and chat will be disabled for now. So if you have any question, kindly raise it in Q&A. I request Ms. Professor Bushra to kindly start the session. Thank you so much. Thank you so much, Shehzad. Assalamu alaikum everyone and good evening to all. Today, I am the speaker for you. Today, we are going to talk about employability training program. And before that we start, let me take you through something which is where we'll be starting with exactly what we are going to talk about today. Before I go ahead with this, let me first make you understand what am I going to talk about, and then we'll move in the flow. Very much, and the very first thing is we're talking about winning the interview and winning the job. Now the topic itself, मतलब अगर आप देखोगे तो वो topic में we are talking about job, we are talking about interview, two different things. Again I'm saying two different things, मतलब ये अलग अलग चीजें हैं. इंटरव्यू देना, इंटरव्यू क्रैक करना अलग होता है, जॉब मिलना अलग होता है. आप सोचोगे अरे मैम तो स्टार्ट में ही ऐसे बोल रहे हैं तो हाउ इज इट गोइंग टू बी, ऐसे कैसे हो सकता है, इंटरव्यू देते हैं तभी तो जॉब क्लियर होता है. जब मैं आपको इस फ्लो में लेकर जाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये सेंटेंस इसने स्टार्ट में ही ये क्यों कहा कि इंटरव्यू अलग चीज है और जॉब अलग चीज है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इट. लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. बिफोर दैट, let me just give a brief about myself. As Mr. Shehzad has already spoken about, I have hold a master's degree in management studies with specialization in HR. With regards to profession, it's okay that I am a teacher, I am a faculty, I am a professor. But when it comes to my passion, it's all about mentoring and motivational speaking. It's all about going out and helping as many people as it is possible. And because of this, I feel very happy to be associated with AMP2. Because somewhere I feel that I am able to give out something to my own people, to give out to lot many people, the younger generation. I'm coming up with lot many things ahead. I hope you guys will enjoy this session because this is nothing to do with theory. आपको मैं बिल्कुल भी थेरी बोलकर या डेफिनेशंस पढ़ाकर या कोई ऐसी चीज पढ़ाकर आपको मैं बोर नहीं करने वाली हूँ. मतलब मैं नहीं चाहती कि आपको ये फीलिंग आए कि अरे एक प्रोफेसर के लेक्चर में बैठे हो आप. बिल्कुल भी नहीं. मैं जो चाहती हूँ वो ये है कि जब ये सेशन कंप्लीट हो तो आपको इस चीज का अंदाजा हो कि आप कहाँ पर हो और आपको इस जगह से आगे बढ़ना कैसे. बिकॉज जॉब ढूंढने के लिए हर इंसान मेहनत करता है, बट जब जॉब की बात आती है, जब जॉब मिलने की बारी आती है तो हम बहुत जल्दी ऐसे निराश हो जाते हैं और अल्लाह ताला से ऐसे झगड़ा करने लगते हैं कि मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला. इतनी मेहनत करके मैं इंटरव्यू के लिए गई थी पर फिर भी नहीं मिला. तो देखते हैं, मैंने सिर्फ कोशिश की है स्लाइड्स पे वो चीजें डालने की जिससे आपको ये समझ में आए कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें अल्लाह ताला की भी गलती नहीं है. वो जो करते हैं बेशक बिल्कुल बेहतर ही करते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कुछ चीजें होती हैं जो हमको दिखती अलग है और होती अलग है. लेट्स सी इफ यू एक्चुअली आर एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. टू बिगिन विद, मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन पूछ लूं. मतलब मैं नहीं चाहती आप लोग मुझे इसका जवाब दें, बट इस सवाल का जवाब आप खुद के लिए सोचे कि आपका ड्रीम जॉब क्या है.
अब बहुत से लोग बोलेंगे अरे ड्रीम जॉब कहाँ, यहाँ जॉब मिल जाए तो गनीमत है, यहाँ पर जॉब मिल जाए, एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, सैलरी मिल जाए. If I start asking you this question on the personal ground, I am sure many of you will start writing कि बस एक अच्छी सी जॉब हो जाए. आपकी जॉब का ही जो अच्छा वर्ड है ना, अच्छी सी जॉब, उसके आगे आपका सेंटेंस होता है कि बस सैलरी इतनी सफिशिएंट हो कि घर के खर्चे हो जाए, एक्सपेंसेस बेयर हो जाए, कुछ सेविंग्स हो जाए, आपके ईएमआई पे हो जाए, या आपके लिए एक बेटर लाइफ आ जाए. पर जब मैं आपको पूछ रही हूँ ड्रीम जॉब क्या है, वो ऐसा जॉब होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है काम करने में. जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे सेशंस ले रही होती हूँ, या मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ जब मैं किसी स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती हूँ या उनकी हेल्प कर रही होती हूँ. अब मैं चाहूँ तो आई हैव गॉट lakhs of rupees का annual CTC package in corporates, and to remind you or to give you a brief, I started from corporate and then I shifted to teaching. तो मेरे लिए तो लाखों रुपए हैं कॉर्पोरेट में, अल्लाह के करम से. बट देन व्हाट इज योर ड्रीम जॉब, ये आप मुझे मत बोलिए. मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए पुटअप किया है ताकि जब आप आगे सुनोगे ना तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई कंसेप्ट है भी, या फिर ये सिर्फ इस तरीके से है कि हाँ ठीक है आपके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको अचीव करनी है, या फिर चीजें बस चलती जा रही है. लाइफ जीना अलग चीज होती है और लाइफ में सरवाइव करना अलग होता है. तो पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए था, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू आफ्टर गेटिंग अ जॉब. अब इसका जवाब भी आप लोग सोच में पड़ोगे. मैं चाहती हूं आप लोग सोचो. इन सवालों से जब मैं आपको कुछ पूछ रही हूं तो मेरा मीनिंग ये है कि आप ये सोचो कि एक्चुअली में व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस. हम ना लोगों को सवाल बहुत इजीली कर लेते हैं. मैं भी ना आपको इतने आराम से लिख रही हूँ ना, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू आफ्टर गेटिंग अ जॉब. मैंने भी कभी अपनी फर्स्ट जॉब की थी, कभी फर्स्ट सैलरी उठाई थी, तो आई वाज लाइक मुझे क्या करना है. तब मैंने भी ऐसे सोचा नहीं था, बट ध्यान में क्या होता है, मम्मी के लिए गिफ्ट लेंगे, डैडी के लिए कुछ लेंगे, घर का ये लेंगे. बट फीलिंग कैसी होती है पता है, जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है ना, आप चाहे जॉब के लिए ज्वाइन भी नहीं किया होगा आपने, बस आपको वो ऑफर लेटर आ गया या आपको किसी ने बोल दिया यू आर सिलेक्टेड, तो हम है ना वो सपना सजाने लगते हैं कि हाँ यू हैव अचीव्ड समथिंग. और ये अचीवमेंट है ना आप दिखाने लगते हो. दिखाने इन द सेंस आप ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को पुल अप कर लेते हो कि ठीक है अब है ना घर का रेंट मैं दूंगा, अब है ना घर के ये एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा, अब घर के एक्सपेंसेस में मैं भी शेयर दूंगा, अब मैं ये चीज भी हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं. आपकी सैलरी आई नहीं है, बट देन आपको ये सारी चीजें ना आपके दिमाग में दिखने लगती है और यही आपकी खुशी का रीजन बनती है कि फाइनली आई हैव गॉट अ जॉब एंड नाउ I am also an earning member of the family. I am also an employed person in the society. सोसाइटी में, माशरे में लोगों को पता है, लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी लोगों को बोल सकता हूँ कि मैं वर्किंग हूँ, मेरी भी सैलरी आती है, मेरी भी इनकम होती है. तो उसी तरीके से जब आपका पहला काम क्या होगा, हम फिर है ना उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो होने वाली है. आज नहीं तो कल वो होगी इंशाल्लाह. बट जॉब मिलते ही सबसे पहला क्या करोगे, aren't you going to thank to your God? Obviously. But then आप प्रैक्टिकल दुनिया की बात करो तो पहला काम क्या होगा, ये सोचो. मैं आपको जवाब नहीं दे रही. अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसके आंसर्स आपको बताऊंगी, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट हर इंसान अलग अलग सोच रखता है, अलग अलग बैकग्राउंड रखता है, अलग अलग कंडीशनिंग रखता है. बट इस बारे में सोचो कि जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो पहला काम आप क्या करोगे, एंड व्हाई इट हैज टू बी दैट वे. The moment you say this, the moment you talk about this, in this case, you are talking about how are you going to move ahead. Next, we move on to ये सारे questions की वजह से हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं. एक पहला चीज, जब मैं आपको statistics बता रही हूँ, 61% of the employees says reality of their new job differs from expectation. अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैंने ये क्यों कहा. इंटरव्यू अलग चीज होती है और जॉब अलग चीज होती है. इंटरव्यू के लिए जाना, इंटरव्यू अपेयर करना और जॉब पे जाकर जॉब ज्वाइन करना, दो अलग अलग चीजें होती है. ये सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स है जहां पर मैं जब एज एन एचआर आपसे मिलूं या मैं एज एन इंटरव्यूअर आपसे मिलूं, सिंपल लैंग्वेज में भी अगर मैं आपको कहूं दैट इफ आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, मैं आपको जो चीजें बताती हूँ
आप उस हिसाब से एक सपना बना लेते हो, हाँ मेरा जॉब ये होने वाला है। सिंपल सा ले लेते हैं, मेरे पास एक पानी की बोतल है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हूँ और आपको ये पानी की बोतल जाके बेचनी है, मार्केट में जाकर बेचनी है। तो मैंने आपको कैसे बताया पता है, आपको टारगेट अचीव करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट से जाके बात करनी पड़ेगी, आप मतलब ऐसे शो करूंगी कि आपके बिना मेरा बिजनेस कुछ भी नहीं। बट रियलिटी में जब आप जाते हो काम करने, तो मैंने आपको ये नहीं बताया है कि आपको डेली सुबह 9 बजे पंच इन कर 5 बजे तक टारगेट अचीव करना ही है। जब मैंने ज्वाइन करवाया आपको जॉब, तब मैं आपको क्या बोलती हूँ पता है, हाँ टारगेट अचीव करोगे आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा, टारगेट अचीव करोगे आपको फिक्स सैलरी के अलावा बढ़कर भी कुछ मिलेगा। बट ये टारगेट अचीवमेंट के जो पैरामीटर होते हैं, ये तो आपको धीरे धीरे पता चलता है ना जब आपने जॉब ज्वाइन किया। इसलिए ये लोग, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने सोचकर कुछ और ज्वाइन किया और हमारे साथ हो रहा कुछ और। ये एक पिक्चर है इंटरव्यू प्रोसीजर। दूसरा, 89% of the candidates would share their negative experience with their families. ये नेगेटिव रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है पता है, कि मेरे साथ ना इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मैंने तो बहुत कुछ बोला, मेरे को कैंडिडेट ने, मुझे इंटरव्यूअर ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, या इंटरव्यू ने बोला जो सबसे बेसिक, मैं जानती हूँ बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो ऑलरेडी या तो एम्प्लॉयड हैं या तो फिर एक जॉब ढूंढ रहे हैं या इंटरव्यूज पे जाकर आए होंगे। तो आप देखोगे कि वहां पर है ना, आपको एक सेंटेंस बोला जाता है, वी विल गेट बैक टू यू और वी विल लेट यू नो। अब जैसे ही ये वी विल लेट यू नो बोला जाता है ना, इसका कंसेप्ट क्या होता है पता है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपको सेलेक्ट नहीं किया, पर अगर जैसे ही आपको उम्मीद दिखा दी जाए ना कि हाँ वी हैव सिलेक्टेड यू, तो आप वहीं से खुश हो जाओगे। और अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको ना बोलना डिफिकल्ट होगा। इसलिए ना एचआर बहुत सिंपल तरीके से, सरल तरीके से आपको सिर्फ इतना कहता है, वी विल लेट यू नो। तो मेरा सजेशन, अगर आज आप मुझे सुन रहे हो, तो मेरा सजेशन ये होगा कि जब एचआर आपको ये बोलता है ना वी विल लेट यू नो, तो उदास मत हो जाओ। अब आप बोलोगे मैम आपको क्या पता है, मैं 10 इंटरव्यूज देकर आया हूँ, सब में एचआर ने बोला कि वी विल लेट यू नो, बट कुछ पॉसिबल ही नहीं हुआ, कहीं कहीं वर्कआउट ही नहीं हुआ। जानती हूँ, बट मैं आपको पिक्चर का ब्रॉडर एस्पेक्ट दिखा रही हूँ कि वो वी विल लेट यू नो आपको तब भी बोलेंगे जब आपको जॉब देने वाले हैं, क्योंकि वो आपके अलावा दूसरे लोगों से भी इंटरव्यू लेंगे। फिर जब वो लेने के बाद उनको लगेगा कि नहीं आप सूटेबल हो, तो दे विल कम बैक टू यू। दिस इज व्हाई दे टॉक अबाउट टेलिंग यू वी विल लेट यू नो। वो नेगेटिव हो जाता है, तो आप जाके घर पे बोलते हो नहीं हो रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्लाइड है आप लोगों के लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जैसे ही एक कंपनी की वैकेंसी आती है, आप चाहे आप naukri.com जाओ, चाहे आप क्विकर पे देखो, चाहे आप गूगल पे सर्च करो, चाहे आप जो भी जिस तरीके से भी ये करना चाहो, जैसे होता है कि मतलब मैं कहीं पे भी जाके जॉब ढूंढ रहा हूँ, किसी को बोल भी दिया कि अरे मेरे लिए कोई जॉब होगी, तो देखो एक कंपनी की एक ओपनिंग आती है तो वो मिनिमम में मिनिमम या फिर वो एक ऑन एन एवरेज 250 यानी कि 250 रेज्यूम्स अट्रैक्ट करती है। अब ये रेज्यूम्स अट्रैक्ट करने का मतलब है अप्लाई करना। अब एक ओपनिंग आई, आपने भी अप्लाई कर दी, मैंने भी अप्लाई कर दी, 2 लोगों ने एक जॉब के लिए अप्लाई कर दी, तो दोनों में से किसी एक को ही मिलनी है। आपने भी अप्लाई कर दिया, आप साथ में अपने दोस्त को भी कह रहे हो भाई जॉब है वहां पर, तू भी अप्लाई कर। क्या हो गया, उसने भी अप्लाई कर दिया, 3 लोग हो गए। बट जब एचआर बुलाता है ना इंटरव्यू के लिए, तो वो 4 से 6 लोगों को इंटरव्यू करेगा। ऑब्वियसली वो 6 अगर 250 लोगों को इंटरव्यू करने लगा तो हो चुका, जॉब मिलने से रही, मतलब इंटरव्यू में ही जमाना निकल जाएगा। तो व्हाट डू दे डू, यू नो, दे कॉल ओनली द पीपल हु आर सूटेबल, सो दैट कम्स टू 4 to 6 पीपल इंटरव्यू। बट जॉब मिलती कितने को है, एक ही को। क्यों, क्योंकि जॉब ओपनिंग से फेक है। तो आपको अपने आप को इन 250 से उस 1 तक लेकर जाना है। अब मैं बड़े बड़े ऐसे कुछ मोटिवेशनल बोलकर या फिर ऐसा कुछ बोलकर आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, या फिर ये अरे बहुत इम्पॉसिबल चीज बोल रही हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप है ना अपने ऊपर काम करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप ये देखना है कि जो आपने किया, जो आपने लास्ट इंटरव्यू में शायद कोई गलती की या फिर किसी रीजन से अगर वो नहीं हो पाया, तो इस बार वो चीज रिपीट ना हो। अरे अलग अलग तरीके से नई नई गलतियां करो, नई नई गलतियों से सीखो, यू विल गेट टू नो लॉट मेनी थिंग्स, और उन्हीं में होते होते यू विल एंड अप विद अ जॉब, अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब। अल्टीमेटली दो वी नो व्हाटएवर वी आर डेस्टाइन्ड फॉर, वो हमको मिलना ही है। Likewise, when you are talking about next thing, अब ये बहुत astonishing है।
आप डेफिनेटली आई वुड वांट यू कि ये स्लाइड को ना ध्यान से देखो। आप जब आप इस स्लाइड को देखोगे ना, 55% ऑफ योर इंटरव्यू वेटेज इज ऑन योर ड्रेसिंग एंड हाउ यू एंटर द रूम। धड़ से एंटर कर दिया, या फिर आपने आपने ऐसे नॉक किया और आप वहीं रुके हो, किस तरीके से आप एंटर कर रहे हो, किस तरीके से आपने ड्रेसिंग की है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे, सिर्फ 7% है जो आप बोलते हो ना, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। थोड़ा एस्टॉनिशिंग है, थोड़ा ऐसे चौंकाने वाली चीज है, क्योंकि अब तक तो आपने या हमने भी, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें यही बोला गया था कि भाई इंटरव्यू में ऐसे बोलो, वैसे बोलो, ये ना बोलो, वो बोलो, ऐसे इस तरीके से बिहेव करो। बट रियलिटी ये है, ये रियलिटी आती है एचआर से, ये रियलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि जब मैं जाकर एचआर को ये पूछूंगी ना कि भाई चलो ये XYZ इंडिविजुअल आपके पास इंटरव्यू के लिए आया था, तो आपने इसको क्यों सेलेक्ट नहीं किया, एचआर को आपकी कहीं भी 15 मिनट के इंटरव्यू में पूरे के पूरे सेंटेंसेस याद नहीं रहेंगे। भाई इंसान है वो भी, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। आपको मैं अगर 10 पेज के एक नोट्स दे दूं और बोलूं कि ये पूरा याद करो, उसके बाद में मैं आपको पूछूंगी 3rd पेज के 2nd लाइन का 4th वर्ड क्या है, आप बोल पाओगे? डेफिनेटली नहीं, मैं भी नहीं बोल पाऊंगी। बट मैं उस पेज को किस तरह से टर्न कर रही हूँ, मैंने उसको टर्न किया या उसको ऐसे मरोड़ के, ऐसे तोड़ के, फाड़ के रख दिया, या what am I doing is how am I conducting myself gives out a lot many things. अभी अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ एंड आई स्टार्ट बिहेविंग वेरी वियर्ड, मैंने मतलब मैं उठकर चली गई, मैंने सोचा कि भाई ठीक है ना, आप सुन तो रहे हो, मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं, मैं जाकर कहीं और बैठ जाती हूँ, स्क्रीन आप ब्लैंक स्क्रीन देखो, आप इरिटेट होने लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या है, दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड टू डू। भले ही आपको मैं सुनाई में दे रहे हूँ, बट मेरा बिहेवियर आपको पसंद नहीं आएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा तो आप कहोगे स्पीकर वाज नॉट गुड। क्या हुआ? Again, the way I am behaving, the way I am interacting with you, or I am speaking to you matters more than what actually I am saying. मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। अभी मैं तो आपको ये नहीं कह सकती ना कि मैंने जब सेशन स्टार्ट किया 15 मिनट पहले मैंने पहला वर्ड क्या बोला वो बोलो। Getting? That's where we are talking about your interview room, जहां पर 38% is based on the quality of your voice. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो हम ध्यान ही नहीं देते। अभी सोचो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्लोली मैं बोलूं हाँ ठीक है, विल यू बी एबल टू लिसन टू मी? होगा क्या पता है? मैं आपको आपका एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने धीरे से बोलना शुरू किया ना, थोड़ी देर आप ना कोशिश करोगे, नहीं नहीं मैम बोल रहे हैं, सुनना है, सुनने के लिए ज्वाइन किया है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना आप म्यूट कर दोगे, आप लीव कर दोगे, आप बोलोगे अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेनर क्या बोल रही है, वो स्पीकर क्या बोल रही है, सुनना था बट स्पीकर वॉज नॉट लाउड। समझा? तो उसी तरीके से जब आप अपने इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो ना, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपनी वॉइस को फर्म नहीं रखा ना, तो आपके इंटरव्यूअर है ना थोड़ी देर कोशिश करेगा आपको समझने की और आपको सुनने की, उसके बाद में इट्स ऑल अबाउट ठीक है बाबा विल लेट यू नो। एंड देन आपकी आवाज के बेस से ये अंदाजा मिलता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है आप में से बैठे हुए लोग हैं जो किसी को धीमे बोलने की आदत होगी तो उनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है। द आइडिया इज हाउ डू यू एक्चुअली रियलाइज कि आप कैसे कंडक्ट कर रहे हो खुद को, और आपको ये पता चलेगा। इसके बाद ना अगर आप किसी इंटरव्यू में गए ना, तो कोशिश करो कि आप खुद को कंडक्ट कैसे करते हो, कैसे बिहेव करते हो ना, उस हिसाब से इंटरव्यू देकर देखो। आपको रियलाइज होगा कि आपने जो बोला है ना उस पे वेटेज कम, और आपने जैसे बिहेव किया है ना उस पे वेटेज ज्यादा होगा। और इसी साथ में ना पहली चीज, अब ये जो मैंने स्लाइड पे थ्योरी रखी है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप इसको पढ़ो या रटो या फिर ये समझो कि अच्छा जैसे हमको पता नहीं है जॉब इंटरव्यू क्या होता है। मैंने पूछा है व्हाट इज अ जॉब इंटरव्यू, या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जॉब इंटरव्यू क्या है। आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ और एक सिंपल सा पॉइंट देती हूँ, कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह ये शायद आपके दिमाग में बैठ जाए। द पॉइंट रिमेन्स, एक जॉब इंटरव्यू एक दो लोगों का, चलो मैं फिलहाल दो बोलती हूँ, दो लोगों का कॉन्वर्जेशन होता है। ध्यान से सुनिए, दो लोगों का कॉन्वर्जेशन होता है जिसमें एक इंसान होता है जिसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, एक इंसान होता है जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है।
आई रिपीट, एक कॉन्वर्जेशन दो लोगों के बीच में, एक इंसान है जिसके आपके बारे में कुछ नहीं पता और दूसरा इंसान है जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है। अब मुझे ये बताओ, जब ये दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है तो कौन से इंसान को आपके बारे में ज्यादा पता है, इंटरव्यूअर या आप खुद? डेफिनेटली ना, आपको आपके अलावा वो इंटरव्यूअर तो शायद आपसे कभी लाइफ में मिला भी ना हो, आपसे पहली बार मिल रहा हो और 15 मिनट की मीटिंग में वो आपको क्या जान लेगा, बट आप तो अपने आप को जानते हो ना, एंड दैट इज द पॉइंट। बट होता क्या है पता है, हमने अपना जॉब इंटरव्यू को इतना हाइप कर लेते हैं ना कि अरे नहीं, जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है कि हम है ना ये भूल जाते हैं कि सामने बैठा हुआ जो इंटरव्यूअर है ना वो भी एक इंसान है, पहली बात। दूसरी बात, वो हमको जानता नहीं। तीसरी बात, वो वही जानेगा जो हम उसको बताएंगे। तो उस केस में मैं नर्वस हो जाऊं, मैं ऐसे डर कर बात करूं, तो वो वही देख रहा है। इंसान दुनिया में वही देखता है जो दूसरे उसको दिखाते हैं उनके बारे में। तो आप अगर डर कर दिखाओगे तो वो यही देखेगा कि आप डरे हुए हो। अगर आप ये दिखाओगे कि आप मतलब कॉन्फिडेंट हो तो वो डेफिनेटली आपसे आगे बात करेगा। बट द फैक्ट रिमेन्स, आपको दिखाना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बट हम यहीं पर गलती करते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, आगे की स्लाइड्स में हम गलती यहीं पर करते हैं। जॉब इंटरव्यू को ना हम जॉब इंटरव्यू की तरह नहीं लेते, एक जंग की तरह लेते हैं, एक बैटलफील्ड की तरह लेते हैं। एंड देन वी आर लाइक, आई एम सपोज टू समहाउ क्रैक दिस इंटरव्यू। नहीं क्रैक किया ना तो इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, मिलना ही है। जानती हूँ, बट जॉब इंटरव्यू का हमारा पॉइंट क्या होता है पता है, हमको वो जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं करनी होती, हमको उस जॉब से मिलने वाली सैलरी से अपनी जो नीड्स है वो पूरी करनी होती। और जब तक आप ये माइंडसेट रखोगे ना कि नहीं समहाउ मेरे को ये जॉब मिल जाए, जानती हूँ बहुत से लोगों की सिचुएशन होती है, हमारी भी थी, हमारे भी स्ट्रगलिंग डेज थे, पर अगर आप यही सिचुएशन के हिसाब से सोचोगे ना, प्रॉब्लम कहाँ आएगी पता है आपको, आप उसको हमेशा सोर्स ऑफ मनी देख पाओगे, कभी ये नहीं देख पाओगे कि आपकी काबिलियत क्या है या आपका एलिमेंट क्या है। इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन पे, अगर आप देखोगे तो मैंने एक वर्ड है गुड फिट, उसको हाईलाइट किया है। बहुत जो मैंने बहुत सोच समझ के ना कुछ वर्ड्स हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है कि आप समझो इस बात को। सूटेबिलिटी, आप अगर उस काम के लिए बने हो तो वो आपको मिलेगा ही, पर अगर नहीं बने हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल भी काम के नहीं। आपके लिए जो सूटेबल है या आप जिसके लिए सूटेबल हो वो जाएगा ना आपको। ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। That becomes my very first step when I am talking about moving to the interviews. अब next, ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हमारी ऑडियंस में कुछ तो लोग होंगे जिनको शायद इनके बारे में ना पता। अब मैं इनको ब्रीफ में नहीं जा रही हूँ, बट मैंने आपकी स्लाइड पे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज इसलिए रखे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार सिर्फ एक ही इंसान आपका इंटरव्यू ले। हाई पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोग भी लेते हैं, जैसे पैनल इंटरव्यू होता है, 3 4 5 लोग बैठ गए एंड देन पूरा एटमॉस्फेयर रूम का इतना हेवी होता है कि अरे पता नहीं मुझसे कौन क्या पूछेगा। एक इंसान पूछ रहा है, आप उसको जवाब दे रहे हो, तब तक दूसरा इंसान आपको घूर रहा है, आप उसकी तरफ देखते हो तो तीसरा इंसान आपको क्वेश्चन करता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी हेवी फॉर यू कि मैं कैसे जवाब दूं और क्या जवाब दूं, मैंने सही जवाब दिया भी कि नहीं। बात वही आ जाती है, आपके अलावा चाहे एक इंसान हो, चाहे 3 इंसान हो, चाहे 300 इंसान हो, आपके बारे में लोग वही जानेंगे और वही समझेंगे जो आप उनको बताओगे। आप अगर ब्लफ कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा, आप अगर जेन्युइनली बोल रहे हो तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं बोलूं अरे नहीं मैं कल ही है ना यूएस जाकर, डेफिनेटली ना आप समझ जाओगे कि अरे नहीं मैम क्या कुछ भी फेंक रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मी बीइंग वेरी प्रैक्टिकल कि नहीं अभी मैं एक रूम से दूसरे रूम में आई, इट्स प्रैक्टिकल। बट ये मुझे बोलने के लिए ना सोचना नहीं पड़ेगा, हाँ मैं एक रूम से दूसरे रूम में आई, इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड अ वेरी जेन्युइन थिंग। बट मैं यूएस जाके आई तो मेरे बोलने का तरीका, मेरी आंखों का तरीका, मेरा आंख मिला के देखने का तरीका, मेरी आवाज का टोन बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए ना जितना हो सके ना इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वो ऑनेस्टी भी आपको पे करती है। जैसे ये बिहेवियरल इंटरव्यू होता है, इसमें ये देखा जाता है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर जॉब सिचुएशन में, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने आपको एक एज अ सिक्योरिटी एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक मेरा गोडाउन है और मैंने आपको मेरे गोडाउन के सिक्योरिटी गार्ड के लिए अपॉइंट करना है,
अब उस केस में मैंने आपको एक सिचुएशन दी कि अगर गोडाउन में आग लग गई तो आप सबसे पहले क्या करोगे, और मैंने आपको ऑप्शन दिया, मैंने आपको बोला आप खुद वहां से भाग जाओगे, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, आप वहां लगे फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करोगे, या आप मुझे एज एन ओनर फोन करके बताओगे कि भाई आपके गोडाउन में आग लगी। अब वो अगर मैंने इस सिचुएशन में आपको बोला कि बहुत गंभीर आग लगी, आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, आप बोलोगे मैं वहां से भाग जाऊंगा, मेरे लिए समझना जरूरी है कि भाई आप भरोसेमंद नहीं हो। कल अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, आप वो अपने जॉब को छोड़कर चले जाओगे, तो मेरा सामान तो वेस्ट होगा ना, तो फिर मैं आपको जॉब पे नहीं दूंगी। बट अगर आप ये बोलो कि नहीं मैं अपने दिमाग का प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करूंगा, मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा, तब तक थोड़ा फायर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी दिखती है, तो उसमें ये दिखता है कि आप कितना अच्छी तरीके से उस जॉब को करने की अपनी कैपेसिटी रखते हो। उसी तरीके से वी हैव जो ग्रुप इंटरव्यू, फोन इंटरव्यू, लंच इंटरव्यू। लंच इंटरव्यू इज वेरी गुड, आई मस्ट टेल यू, ये बड़ी पोजीशंस के लिए और मीडियम लेवल पोजीशंस के लिए होता है, बट दिस इज गुड बिकॉज इसमें आपके बारे में बहुत कुछ लोगों को पता चलता है जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नाउ हियर ऑन आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, क्लोज योर आईज, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ ये कभी ना कभी आपके साथ हुआ है। I can guarantee, मतलब standing over here on the live platform, I can tell you everyone associated in this webinar right now, including me, has felt this, has experienced this, or might be experiencing, या फिर आगे जाकर ये same चीज होगी आपके साथ। What you do before going to a job interview? आप क्या करते हो पता है? नर्वस हो जाते हो, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, मुझे उस कंपनी का जॉब ऑफर आया, मुझे उस कंपनी का इंटरव्यू आया है, दोस्तों को बताते हो, फैमिली को बताते हो, फिर ऐसे रात को ऐसे ना ऐसे बेचैन रहते हो, कब सुबह होगी, कब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचूंगा। आप कुछ भी, मैं ये नहीं कह रही सब कुछ होता है, बट कुछ ना कुछ हमेशा होता है। आप है ना ये सोचने लगते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि जॉब मिलते ही आप क्या क्या चीजें करोगे, आगे जाके क्या होगा, मैं घर का अर्निंग मेंबर बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी गलती, आई एम रिपीटिंग, सबसे बड़ी गलती जो यंगस्टर्स करते हैं जॉब को लेकर, वो है स्पेशली जो फर्स्ट जॉब होता है, वो ये है कि हम ना इंडस्ट्री चूज करते हैं ना प्रोफाइल चूज करते हैं। भाई जरूरी नहीं है एक बीकॉम ग्रेजुएट है तो उसने कहीं भी अपने ऐसे अमिताभ बच्चन जैसा अपने हाथ पे लिखवा नहीं लिया है कि भाई मैं सिर्फ अकाउंट्स ही कर सकता हूँ या मैं सिर्फ कॉल सेंटर ही जा सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बैक ऑफिस हो गया, एडमिन का जो रोल हो गया, आपको पता है कंपनी में एडमिन मैनेजर का भी पोजीशन होता है। तो उस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कंपनीज, कॉलेजेस, हर जगह एडमिन की जरूरत होती है, मेंटेनेंस की जरूरत होती है, रिटेल ऑपरेशंस है, यानी एक मॉल जो जिस तरह से चकाचक हमको दिखता है वो दिखने के लिए, उसको वैसा रखने के लिए हमको सुपरवाइजर की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजों के लिए ना आपको बैठ के ये सोचना पड़ता है। मैं ठहरी टीचिंग बैकग्राउंड की, अब अगर कल मुझे एक कॉर्पोरेट से जॉब आता है एंड डे से आपको एज एन एचआर मैनेजर ज्वाइन करना है और मुझे कोई एचआर का एक्सपीरियंस नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और मैं सोचूं अरे नहीं टीचिंग में इतनी सैलरी, इससे अच्छा मैं कॉर्पोरेट में चली जाऊं, बहुत सैलरी मिल रही चली जाऊं, बट वो इंडस्ट्री स्विच क्या मेरे लिए सही है? और उससे भी ज्यादा मुझे मार्केटिंग का ऑफर आ रहा है, मार्केटिंग में तो सैलरी आराम से ज्यादा मिलती है इंसेंटिव्स के बेसिस पे, तो मुझे दिख रहा है अरे हाँ मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा सकती हूँ, चलो स्विच कर लेते। ये गलती बहुत से यंगस्टर्स, आई वुड से 70 to 80% यंगस्टर्स ये गलती करते हैं, जिनको ये नहीं अंदाजा होता है कि हमको पहली इंडस्ट्री कौन सी चूज करनी, बिकॉज आपका पहला जॉब ही आपको दूसरे जॉब के जॉब कॉल्स दिलाएगा, ये बहुत जरूरी होता है। कैटेगराइज योर जॉब टू बी एक्सेप्टेबल, ये एक बहुत बड़ी गलती है। हम लोग क्या करते हैं पता है, जॉब के प्रोफाइल को बाद में देखते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, 10 से 15,000, 15 से 20,000, क्या कौन से लेवल की सैलरी मिलेगी। हम लोग ये कोशिश ही नहीं करते देखने की क्या वो काम करने में मुझे मजा आएगी, बिकॉज सैलरी मुझे महीने में एक बार मिलने वाली है, वो काम मुझे महीने के पूरे 26 दिन 30 दिन करना है, क्या मैं वो कर पाऊंगा, क्या वो करना मेरे लिए मजेदार है, am I going to enjoy it or is it just going to be a plain platonic or a very monotonous thing, जाओ ऑन करो सिस्टम बैठो, that's it. If I do this way, what am I going to earn? Where is my satisfaction? Where is my overall learning in this? And we only think of clearing the interview positively. अब ये मैंने क्यों लिखा है पता है, आप लोगों को ना रीड करके समझ में नहीं आएगा ये पॉइंट, बट मेरा बोलने का मतलब क्या है पता है, इससे हम लोग है ना जैसे ही जॉब का कॉल आता है ना, इंटरव्यू कॉल, हम लोग क्या करते हैं पता है, हमने भी किया है भाई, हम क्या करते हैं पता है, कल ये जॉब मिल जाए, बस कल ये जॉब मुझे किसी तरीके से मिल जाए, कल किसी भी हालत में ये जॉब मिल जाए। अब कोई ये बैठ के सोचता ही नहीं है
कल जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, मेरे नसीब का होगा, मेरे लिए सूटेबल होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं मिला तो मुझे अगला और कहाँ अप्लाई करना है, नहीं मिला तो मुझे और कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है। ये जॉब जो मुझे दिख रहा है, जो उसकी डिटेल्स मुझे दिख रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर ये नहीं मिला तो मैं इसी जैसा और जॉब ढूंढूं, कहीं तो मिलेगा, कोई तो कंपनी में मिलेगा। ये बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट यू शुड बी डूइंग बिफोर अ जॉब इंटरव्यू। एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए पता है? शांत रहो, स्ट्रेस मत करो, मिलने वाली चीज है, आप तक आएगी। आप आउटकम के बारे में मत सोचो, जो चीज हुई नहीं है। अभी मैं आपको बोलूं, आज 26 जून 8:30 हो रहा है, 8 हो रहा है, अब मैं ना बैठ के सोच रही हूँ कल 7:30 बजे शाम को क्या होने वाला है। इज इट गोइंग टू मेक सेंस? आप बोलोगे अरे मैडम क्या आप भी कल का कल देखेंगे। तो जब मैं ये सोच सकती हूँ, जब मैं आप मुझे ये बोल सकते हो, तो कल इंटरव्यू में क्या होने वाला, लेट दैट बी डिसाइडेड ना, वो कल का पता चल जाएगा ना। किस खुशी में हमको जरूरत है कि उसके बारे में हम अभी से सोचें और अभी ही सोचें? इज इट नेसेसरी? बिल्कुल भी नहीं। शुड टेक अ फ्रेश प्रिंट ऑफ योर रेज्यूमे। ये ना हम लोग बहुत गलती करते हैं। हम लोग है ना, पुराना रेज्यूम प्रिंट किया हुआ था, हाँ अरे वो फोल्डर में रखा हुआ है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है या ये कॉपी रखी हुई है, चलो ये ले लेते हैं। इज इट गोइंग टू लुक गुड? टेक अ फ्रेश प्रिंट, उसमें आप थोड़ा कुछ अपडेट करते हो। बहुत टाइम मैंने जब एज एन एचआर देखा है, मेरे पास यंगस्टर सीवी ला रहे हैं एंड देन दे आर लाइक मैम ये अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड मैं आपको मेल कर दूंगा। उसमें होता क्या है, आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया वो नहीं दिख कर आ रहा है, आपने अगर ये लिखा है कि मैंने ये यहाँ पर 6 महीने काम किए, वो दिख कर नहीं आ रहा है। तो इट्स नेसेसरी। एंड सबसे अच्छी एक बात बताऊं आपको, ये ना एजुकेटेड लोगों के लिए करने वाली चीज है। जब आप कोई कंपनी के बारे में आपको जॉब ऑफर आती है ना, कोई भी छोटा बड़ा जो भी कंपनी ढंग की कंपनी आती है ना, उसके बारे में ना वेबसाइट्स होती हैं, ग्लासडोर है, इंडीड है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होगी। इनको ना, इन पे जाके ना इन कंपनियों के बारे में पढ़ो, आपको पता चलेगा कि अरे हाँ ये कंपनी अच्छी है, काम करने लायक है भी या नहीं है, दूर से सब कुछ अच्छा दिखता है। और वहीं पर आपको ना आधा ऐसे ना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इंटरव्यू कैसा हो। फॉर्मल्स पहन के जाना ये तो आपको हर कोई बताता है, बट उसके साथ बट रिमेंबर दैट लाइट कलर हो या सॉलिड कलर्स हो, ताकि पीपल शुड नॉट फील दैट यू आर लुकिंग वेरी जैजी एंड समथिंग लाइक दैट। अब tell yourself to accept the result no matter what it may be. So try accepting. नहीं हुआ ठीक है, I'll try it better. That doesn't mean कि आप पूरी तरह से निराश हो जाओ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इन अ जॉब इंटरव्यू। अब ये जो अगली 3 स्लाइड्स है ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी और आई वुड वांट यू कि ना आंख बंद करो और अपना इंटरव्यू, अगर आपने कभी दिया है ना, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी, आई एम सेइंग आपका जॉब इंटरव्यू, आपका स्कूल में एंट्री का इंटरव्यू दिया होगा, जूनियर कॉलेज में दिया, कोई भी इंटरव्यू, उसके बारे में सोचो। क्योंकि जब आप ये देखते हो ना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ पता है, इन तीन अगली 3 स्लाइड्स में आई एम गोइंग टू शोकेस यू कि हम करते क्या है और उसका असर हमारे साथ साथ दूसरों पे कैसे होता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से या आपके बोलने या आपकी किसी रिएक्शन से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई दूसरों ने किस तरीके से उसको लिया। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहली चीज, व्हेन यू रीच द इंटरव्यू वेन्यू, जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब आप उस जगह पे पहुंचते हो, हम लोग क्या करते हैं पता है, पहुंचे, जैसे ही पहुंचे ना, वी आर ऑल लाइक चलो जल्दी पहुंचे। हम पहुंच कर ना रिसेप्शनिस्ट को पूछते हैं, हाँ ठीक है, आई एम हियर फॉर एन इंटरव्यू, पहुंचो ठीक है, बट उसके बाद जस्ट काम डाउन, सेटल डाउन। बार बार घड़ी देखने की जरूरत नहीं, आपकी घड़ी देखने से टाइम बदलने नहीं वाला है, आपको वो लोग जब लेने वाले हैं तभी लेंगे। बार बार जाकर रिसेप्शनिस्ट को ना पूछो कि अरे कितनी देर लगेगी और कितनी देर लगेगी, आपको कौन सा जाकर कोई करोड़ों की मीटिंग अटेंड करनी है इसके बाद। बट ह्यूमन नेचर है ना, वी बिकम रेस्टलेस, वी बिकम मोर एंजाइटी ओरिएंटेड, यार कब होगा, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना इट बिकम्स इन योर ब्रेन कि इंटरव्यू हो और खत्म। जितनी जल्दी होता है ना उतनी जल्दी इंटरव्यू हो और ये हेडेक खत्म। एक बहुत ही अच्छी सी बात बोलती हूँ, अगर आपको कोई चाय कॉफी के लिए पियून आकर पूछे ना, कोई भी आपको कोई पूछता है ना, हाँ बोलो, हम क्या करते हैं शर्म के मारे, नहीं चाहिए, नहीं थैंक यू,
क्यों नहीं भाई? अगर उन्होंने आकर आपको बोला है, आप ऑल द वे इतना ट्रैवल करके गए हो, मन में बड़ा है कि हाँ चाय पीनी है, कॉफी पीनी है या फ्रेश फील करना है, पानी मिल जाए एक ग्लास, तो ना क्यों बोलना? हाँ बोलो, फील रिलैक्स्ड, फील काम। आप वहां पर, मैंने पहले भी बोला ना, आप जंग लड़ने नहीं गए हो, एक जॉब इंटरव्यू देने गए हो, जस्ट कीप रिलैक्स। और जो सबसे बड़ी बात, मैं जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, मेरे साथ में ना और 2 लोग आए हुए हैं, मैंने क्या किया पता है? मैंने ना ऐसे झांक कर उनके सीवी में देखा, हाउ इज इट, अरे ये बंदा तो वो MBA है, मैं तो डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ, बट ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, इसी को मिलेगी, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास तो 6 महीने का एक्सपीरियंस है, जाने दे, मेरे को तो मिलेगी नहीं, जाके आता हूँ अंदर, खाली इंटरव्यू देके बाहर आ जाऊंगा। ये मत करो, डोंट डू दैट। दूसरों से बात करो, बट बी वेरी काम, डोंट ट्राई टू डिग देयर इन्फॉर्मेशन। जितना उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, उतना ही आप ज्यादा नर्वस फील करोगे, यू विल फील के व्हाई इज इट हैपनिंग। अब दूसरी पिक्चर, जब आप इंटरव्यूअर से मिलते हो, ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्राई हैविंग एन आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। अब ये बोलना बहुत आसान है, आई अंडरस्टैंड, व्हेन वी वर आल्सो पास आउट्स एंड वी आल्सो वेंट फॉर इंटरव्यूज, दिस वाज नॉट दैट इजी। आप उसको देखते हो, फिर यहाँ वहां देखने लगते हो, आप भले ही पूरा आई कांटेक्ट ना कर सको, बट देन डोंट ट्राई टू चेज योर आईज, मतलब आंख ऐसे चुराओ मत, जितना हो सके बी काम। नर्वसनेस सबको होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपनी सोचने की और अपने बिहेव करने की कैपेसिटी को के ऊपर हावी करो। अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करो। अब एक बहुत अच्छी मजे की बात बताऊं, हम क्या करते हैं पता है? हम नर्वस होते हैं ना, अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी कि अरे नहीं मैं नर्वस फील कर रही हूँ, अभी मैं सेशन लेने के टाइम पे ना मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ पता है? मेरे हाथ में ना फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी चीज है, मैं ना वो फोल्डर की एजेस, कभी नोटिस करना आपने किया होगा या आपके किसी दोस्त ने, पूछना आपकी फैमिली में किसी ने किया होगा, वी स्टार्ट फ्लिपिंग अपने फोल्डर की ना साइड को ना, ऐसे बैठे बैठे उंगलियों से ऐसे ऐसे फ्लिप कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है पता है? सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हमारा दिमाग है ना कहीं और चल रहा है, वी आर फीलिंग वेरी नर्वस। शांति से फोल्डर को ना टेबल पर बैठकर लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो, आपका जो हैंड बैग या बैग होगा ना उसको उतार कर नीचे चेयर के पास राइट साइड में रख दो। नो नीड टू कीप इट हैंगिंग और कीप इट ऑन योर लैप्स, बिल्कुल भी नहीं, लुक कंप्लीटली अनप्रोफेशनल। सो शांति से आराम से बैठो, बी रिलैक्स्ड, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि बैठते ही बोलना शुरू करो, कोई नहीं करता, बिकॉज जो HR होते हैं या जो भी इंटरव्यूअर है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो भी आपकी चेयर पर बैठ चुके हैं। आज वो इतने एक्सपीरियंस के बाद वहां तक पहुंचे, बट देन दे नो दैट यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। एंड थर्ड पिक्चर, व्हेन यू लीव द इंटरव्यू, जब आप हो जाता ना आपका इंटरव्यू, सबसे जरूरी है कि केबिन को ना बहुत ग्रेसफुली जाओ, केबिन से ना बाहर बहुत ग्रेसफुली निकलो। मतलब क्या होता है पता है? गिव अ स्माइल, ग्रीट एंड अच्छे से निकलो। ये नहीं हुआ कि हाँ ठीक है, इंटरव्यूअर ने बोल दिया आपको मुंह पे कि हाँ हम आपको बताएंगे, तो आप ऐसे शक्ल लटका कर एंड देन यू आर लाइक हाँ ठीक है थैंक यू बोलकर आप निकलो। लीव एज ग्रेसफुली एज यू कैन। बाहर निकलो, दरवाजा जोर से ऐसे धड़ से बंद मत करो, आराम से ग्रेसफुली बाहर जाओ। और बाहर जाने के टाइम पे ना किसी भी कैंडिडेट को ना ऐसे अजीब सी शक्ल बनाकर या चिढ़कर या गुस्से में देखकर या फिर ऐसे मत सोचो कि यार मुझे नहीं मिली, इनमें से किसी एक को जॉब मिलने वाली। नेवर डू दैट। आपके नेगेटिव एटीट्यूड से उनको भी प्रॉब्लम होगी। और कोई ने अगर आपको, हमारी होता है पता है, कॉलेज में भी बहुत से लोग होंगे जो डिग्री ग्रेजुएशन किए हैं, कॉलेज में अगर कभी वाइवा वगैरह होता है तो वो वाइवा रूम से जब आप बाहर आते हो तो आपके दोस्त आपको ऐसे घेर लेते, क्या पूछा, तो आप क्या करते हो पता है? ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताने लगते हो, मेरे को तो ये भी पूछा, मैंने ऐसे जवाब दिया, मैंने वैसे जवाब दिया। डोंट डू दैट। अगर आपको आपका कोई फेलो कलीग, साथ में बैठने वाले अटेंडेंट अगर आपको पूछ रहे हैं ना, मत उनको इतना ओवर एग्जैजरेट करके बताओ कि वो भी नर्वस फील करने लगे। ये मैं कुछ ऐसी चीजें बोल रही हूँ जिससे आपकी पर्सनालिटी बनेगी। आप ये मत सोचो कि ये जॉब मिलने के, अरे मुझे जॉब मिली नहीं मिली, जॉब इन चीजों से भी मिलती है। आप बाहर आकर अगर ऐसा कुछ करोगे तो आप अभी भी कंपनी से बाहर नहीं आए हो, रिसेप्शनिस्ट है, बहुत से लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। Whatever you have answered in the interview, do keep evaluating that. Do not keep evaluating that answer. घर पे जाकर सोच रहे हो, उसने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने ये आंसर दिया, सही था क्या? दे दिया, खत्म हो गया। बहुत से लोगों की एग्जाम में आदत होती है ना, पेपर खत्म, क्वेश्चन पेपर या तो बैग में या तो डस्टबिन में, डिस्कस नहीं करना। सेम गोज विद दिस। आप इवेल्युएट करो, बट इतना मत करो कि यार आपको ये लगने लगे अरे हाँ दिस इज वेयर आई वेंट रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव डिड दिस, आई शुड नॉट हैव टोल्ड दिस, नेक्स्ट टाइम मैं ना ये नहीं बोलूंगा। It's okay. Whatever you said, it was the moment.
आपने तभी बोला, खत्म हो गया, दैट्स ऑल, दैट्स इट. Right person at the right job. It is all about this 5 to 6 words जो आपके जॉब को, आपके करियर को, पूरी इंडस्ट्री को डिफाइन करता है. किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आप अगर उस जॉब के लिए राइट हो, वो जॉब आपको मिलेगी. आप अगर उस जॉब के लिए राइट नहीं और वाइस वर्सा वो जॉब आपके लिए राइट नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलेगी. अब है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा देखो स्क्रीन पे, आप नोटिस करोगे, आप देख रहे हो कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है ना, बहुत से लोग होंगे. अभी अगर मैंने लोगों से पूछना शुरू किया और अगर हमने इसको इंटरैक्टिव कर दिया ना, आधे से ज्यादा लोग, मैं गारंटी से बोलती हूँ, बोलेंगे कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता या हम लोग इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते बिकॉज हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं. अगर आप ग्राफ को नोटिस करो तो इट इज हार्डली 9% ऑफ योर 100% जॉब इंटरव्यू गारंटी कि जहां पर आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है. मैटर क्या करता है पता है? आप कितने अच्छे से सुन रहे हो और आप कितना रेलेवेंट क्वेश्चन करते हो. अभी मुझे अगर इतने सारे पार्टिसिपेंट्स दिख भी रहे हैं, बट मैटर क्या करेगा कि किस तरीके से आपने मेरे इस कंटेंट को लिया और इससे आपने क्या पॉजिटिवली सीखा. सो इट्स अटमोस्ट नेसेसरी कि आप देखो कि आप किन चीजों पे फोकस कर रहे हो, किन पे नहीं कर रहे हो. एंड मेनी अदर टाइम्स आप नोटिस करो 18% अदर फैक्टर्स है. अभी अदर फैक्टर्स पता है क्या होते हैं? आपने अगर सैलरी ज्यादा बोल दी या आपका जॉब लोकेशन, आपका रहने का लोकेशन दूर है. मैं रहती हूँ थाने और मेरा जॉब का लोकेशन है CST में, कहीं तो भी बहुत दूर. एम्प्लॉयर सोचेगा भाई ये रोज ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं तो बारिश के सीजन में प्रॉब्लम होगी, तो दे विल नॉट हायर मी. तो इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं सूटेबल नहीं हूँ या मैं केपेबल नहीं हूँ. आई एम वेरी मच केपेबल, आई एम वेरी मच सूटेबल, एग्जैक्टली, बट वो फैक्टर मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा. दैट्स इट. तो इसी तरीके से ना, जब भी नेक्स्ट टाइम आपका कभी कोई जॉब इंटरव्यू हो और आपको ऐसे लगे ना कि दिस इज नॉट वर्किंग द वे इट शुड बी, गो अहेड विद इट, गो अहेड इन द मैनर कि हो सकता है समथिंग एल्स इज देयर. अब मैं आपको ना, I'll take you through some questions and I'm not going to elaborate much, but just listen to read these questions. आपको मैं मीनिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअल में इन क्वेश्चंस को पूछा क्यों जाता है. सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये क्वेश्चन आपसे एक इंटरव्यूअर इसलिए नहीं कर रहा होता है कि उसको आपके बारे में बहुत कुछ जानना है. वो सिर्फ इसलिए कर रहा होता है कि वो जो आप आकर कामली बैठो और आप आराम से उससे बात कर सको और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जा सके. इसलिए याद रखना, आपके बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता है. जब भी आपसे ये कोई सवाल करे, ट्राई गिविंग द बेस्ट ऑफ द आंसर फॉर दिस. एंड दिस क्वेश्चन नॉट एट ऑल डिटरमाइन योर इंटरव्यू रिजल्ट. Nowhere it determines your interview results. This is my tried, tested and experienced thing I am telling you. Tell me something about yourself. सिर्फ आपका communication skills देखा जाता है. हाँ, इस communication skills आपका interview result determine करता है, तो वो आप पर होता है. दूसरी चीज, what are your strengths and weaknesses? इसमें हम क्या करते हैं पता है? हमारी खूबियों को ना बहुत ज्यादा अच्छे से बताने लगते हैं और हमारी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं. Try to keep it both in the balance form. मैं बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं हूँ, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर एनीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल. आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा बताओगे ना, वो आपको कभी ना कभी नुकसान देगी. आप अपनी स्ट्रेंथ में बहुत कुछ बोलोगे, आपको हायर तो कर लेंगे, बाद में आप पर काम का प्रेशर भी उतना आएगा और ये फिर जब आप कंप्लेन करोगे तो बोलेंगे आपने तो बोला था ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है. वीकनेस, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, ये मैंने जैसे ही बोल दिया लोग मुझे हायर नहीं करेंगे, ये बोल के बाबा ये तो हर दूसरे दिन किसी से झगड़ा करेंगे. तो ट्राई टू कीप इट इन अ वेरी सटल एंड अ वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म. थर्ड क्वेश्चन, Why should we hire you? ये पूछते हैं, बहुत जगह पूछा जाता है कि आपको ले क्यों. तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप कंपनी के बारे में बोलना शुरू करें या समथिंग. वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप खुद कितने एम्बिशियस हो. मतलब आप ये बोल दोगे कि मैं हूँ, मैं काम कर सकता हूँ और मुझे 6 महीने के लिए जॉब चाहिए, उसके बाद में मैं अब्रॉड जाने का सोच रहा हूँ, तो वो क्यों आपको लेंगे. कंपनी को ज्यादा ओवर प्रेस भी मत करो, कुछ मत करो, बस शांति से अपने बारे में जितना हो सके उतना ऑनेस्टली बोलो. नेक्स्ट, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ. ये बहुत से लोग पूछते हैं इसलिए ये जानने के लिए कि आपका करियर पर्सपेक्टिव क्या है. आप एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो या फिर इट इज ऑल अबाउट हैविंग इट इन अ वेरी प्लान्ड मैनर कि नहीं मैं शुरू करूंगा ऐसे, फिर आगे जाकर ऐसे, आगे जाके ऐसे बढ़ूंगा. अब इसमें आप बढ़ चढ़कर बोलोगे. आप एक फ्रेशर हो, बीकॉम या BMS कोई भी स्ट्रीम से हो, आपने पास आउट किया एंड देन यू से 5 साल में आई एम गोइंग टू बी द CEO ऑफ द कंपनी. पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो नहीं है. मैं पॉसिबल होना और इम्पॉसिबल होना दो अलग अलग चीजें. तो इसका ये मतलब नहीं है, पॉसिबल कर सकते हो आप, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखकर.
सो जरूरी ये होता है कि वो सिर्फ आपका एम्बिशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से क्या आप बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे करना है, आपने क्या प्लान किया है, क्या नहीं सोचा है। नेक्स्ट, टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली। अब उनको ये नहीं जानना होता है कि आपके डैड मॉम, आपके घर में भाई बहन कितने हैं, किसका नाम क्या है, क्या नहीं है। इससे सबसे बेसिक चीज जो वो मालूम कर रहे होते हैं वो होती है आपका फैमिली बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब अगर आपके डैड अच्छी जगह काम करते हैं, आपका बड़ा भाई है या बहन है जो ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड है, तो एचआर को या इंटरव्यूअर को ये समझ में आता है कि आपको इस जॉब की जरूरत तो है, पर ये आपकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब आप अकेले फैमिली मेंबर नहीं हो जो इस जॉब के थ्रू आप अपना घर का खर्चा चलाओ। तो जब आप बताते हो ना, तो अपनी फैमिली के बारे में ना बहुत एग्जैजरेट करके ना बताओ कि मेरे डैड गवर्नमेंट में थे, रिटायर हो गए, गवर्नमेंट में थे, रिटायर हो गए, पेंशन आ रही है। पता चल जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से कुछ है। और ना ही एकदम गिरकर बताओ कि अरे नहीं कोई भी नहीं है, आई एम वेरी नीडी। यू नॉट प्लीडिंग फॉर द जॉब, यू हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। So just keep it natural, just keep it simple, and just say the minimum details which are required. My brother is a graduate, my father is working in some company. In this kind, na, say like this. ज़्यादा exaggerate करके my brother is working as a senior manager in an IT company, earning 7 lakhs, 10 lakhs का package annual. No need. जैसे ही आप ये बोलोगे ना, समझ में आ जाएगा कि आपको इस जॉब की जरूरत नहीं। वो HR कैसे देखता है पता है कि पॉसिबल है आपको इस जॉब की इतनी जरूरत नहीं है ना कि आपको सैलरी इंपॉर्टेंट है, तो आप कल ये जॉब है ना छोड़कर भी चले जाओगे। अल्टीमेटली कंपनी इज लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। देन नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। ये इसलिए जाना जाता है कि आपने कंपनी के बारे में कुछ चीजें सुनी या पढ़ी या कुछ भी किया है क्या बैकग्राउंड स्टडी आने से पहले। इसमें ना कंपनी को ये नहीं जानना है कि आपको कंपनी के बारे में क्या कितना पता है, कंपनी को ये जानना होता है कि आपको जॉब में कितना इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप उसकी पूरी डिटेल निकालते हो ना। तो अगर आपको जॉब में इंटरेस्ट है और जॉब सीरियसली करना है तो आप डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ोगे। तो कंपनी को बस यही देखना होता है कि आप कितने एंथुसियास्टिक हो, कितना एनर्जेटिक हो या कितना ज्यादा जानते हो। और अगर नहीं पढ़ा है ना तो ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती ब्लफ करो, जस्ट स्टेट इट सिंपली, टाइम नहीं मिला और अपोलोजाइज कर लो कि आई कुडंट गेट टाइम और आई वाज नॉट एबल टू रीड यू अबाउट योर वेबसाइट, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट वंस आई एम आउट फ्रॉम द इंटरव्यू। तो इस तरीके से जस्ट बी ऑनेस्ट। दिस इज वेयर आई एम कंक्लूडिंग। आई मीन आई हैव spoken about things which are talking in terms of your role interview, in terms of how you're supposed to conduct. मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों पे या फिर सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे ध्यान देना या इंटरव्यू पे या मैंने जो कहा है उन चीजों पे। मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम ये चीजें करते हैं। एक पॉइंट पे मैंने भी की है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है कभी ना कभी उन्होंने की है। तो ट्राई मेकिंग मोल्डिंग योरसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव एंड नॉट एज एन ऑप्शन फॉर समवन। जब आप अपने आप को एक अल्टरनेटिव बना लोगे ना तो लोगों को पता है कि उनको आपको लेना ही है। आप अपने आप को ऐसा ऑप्शन रखोगे ना तो लोग कभी भी आपको चूज करके आपको ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट जब वो अल्टरनेटिव रखेंगे ना उनको आपकी वैल्यू रहेगी। एंड विद दिस आई विल कंक्लूड माय टॉक एंड माय सेशन ऑन दिस ऑफ विन द जॉब एंड विन द इंटरव्यू। Thank you so much, Professor Bushra. It was a brilliant session overall. I request Ehsan bhai to take the Q&A session. We've got few questions which are raised in Q&A section. I request you to take them one by one. Thank you. Thank you, Shazad bhai. First question is from Mr. Fayaz Khan. I'm MCA 2019 pass out. I have given 25 interviews. After I finish interview, they say they will call later if I selected, but they never reply. So he means to say that he has given around 25 interviews, but he gets a reply that they will call back later. But till now he did not get any reply. Professor Bushra, what should be the answer for him? Thank you for the question. This is exactly what I say. I'll tell you about myself also. When I started after my MMS, my MBA particularly, I have given almost around, अब मैं ऐसा नहीं है कि आपने 25 बोला तो I am increasing the numbers, but I have given almost around 39-40 interviews in the corporates, and I ranging from Vodafone and all sort of big huge companies. That time even Satyam was working and that premises was there. So the point is, as I told you, when the HR says ना we'll get back to you, ये उनका एक सबटल तरीका होता है दोनों तरफ से हैंडल करने का। एक कि वो आपको ये उम्मीद नहीं देना चाहते कि you are being selected,
दूसरा, वो आपको डिजेक्टेड नहीं फील कराना चाहते कि यू आर रिजेक्टेड एट दिस वेरी पॉइंट इटसेल्फ। अगर वो आपको, आपने 25 इंटरव्यूज दिए हैं, तो माय सजेशन फॉर यू वुड बी कि ट्राई अंडरस्टैंडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जो जॉब की डिटेल्स आप अप्लाई कर रहे हो वो, और आपका सीवी मैच करके ये देखने की कोशिश करो कि आपके एमसीए के स्किल्स में ऐसी कौन सी चीज है जो वहां पर मैच नहीं हो रही। और जहां तक हो सके ना, आपके सीवी को अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ एनहांस करो, और वो वर्ड्स डालो जो आपके naukri.com के जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शंस आते हैं ना, जहां आपने अप्लाई किया होगा, उनमें से ना टेक्निकल वर्ड्स उठाओ और वो वर्ड्स है ना आपके सीवी में डालो, ताकि आपका सीवी ज्यादा से ज्यादा रीच में आए और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर आपको कॉल करे। And when they say we'll get back to you, it's nothing to feel dejected. I understand after 25 interviews through, and it's a difficult thing, but ultimately understand it is not about you being incapable. It is about you or the job being misfit for you. So what I would suggest is do this technical analysis कि जो job description आप apply कर रहे हो वो आप fit क्यों नहीं हो पा रहे हो, and you will definitely see some kind of a difference when you change the approach of applying for your job. Hope that answers the question. There's Mr. Sheikh Mohammed Saad who has asked a question. Ma'am, my question is how to be confident in interview. Professor Pushra, what would be the answer to him? Thank you for the question. This is something very simple. आपको मैं सिंपल सी तरीका बताती हूँ. All you need to do is, जब आप जाते हो ना इंटरव्यू में, with your dressing and everything, it's a very common thing. वो हर आजकल का यंगस्टर कर लेता है. The simplest thing is, आपका जो tell me something about yourself है ना, उसको है ना आपका जो सीवी का कंटेंट है ना उसके फ्लो में स्टार्ट करो. मैंने अपनी स्लाइड्स में भी वो लिखा हुआ है. आप है ना जब आपको वो जैसे ही बोलेंगे ना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप ना वहां से शुरू करो जैसा आपने फ्लो दिया है. जैसे आपका नाम हो गया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक योर नेम. This I'm telling it on the same platform. You're not supposed to speak your name. How does it sound when I say Mr. Fayaz or Mr. Rehman or whatever it may be? Please tell me something about yourself. When I know your name, why are you letting me know your name? So just go ahead and speak something like, to start with a brief about myself, and go in the flow of your CV content. इससे क्या होता है पता है, जब मेरे हाथ में आपका CV है और आप जब अपने बारे में बोल रहे हो ना, तो वो मैं ना continuously relate कर पा रही हूँ. So you start with, I am located in so and so location, and my career objective or my idea of joining a job is I am looking for a growth in a particular industry. Talking about my academics, I am so and so qualified. With apart from my academics, I hold this experience, or I don't hold, or I am a complete fresher, and my hobbies involve so and so. Whatever I did, I have given you a very virtual picture of our CV. So just go ahead with the flow of your CV. The first thing first, ये समझ में आएगा कि आपको बोलने का कंटेंट है आपके पास, क्योंकि हम सबसे ज्यादा वही लड़खड़ाते हैं. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या बोलूं, कैसे बोलूं. सो यू हैव अ कंटेंट रेडी इन योर हैंड. सेकेंडली, डोंट टेल योरसेल्फ, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट टेल योरसेल्फ कि मेरा कम्युनिकेशन वीक है इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, या डोंट टेल योरसेल्फ मुझे इंग्लिश नहीं आती. इंग्लिश ना आना, कॉन्फिडेंस ना होना, कम्युनिकेशन ना आना, सब अलग अलग चीजें. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. So there was Mr. Mohammad Sharif Qadri who also asked about the English language. Like अगर English weak है तो क्या करें इंटरव्यू में, सीधा बोले कि मेरा English weak है? Thank you for the question. Don't be so upfront. But इसका ये मतलब नहीं है कि आप है ना जबरदस्ती कोशिश करो. Just try to be natural and normal. The moment the interviewer is posing you a question that tell me something about yourself, start a few lines in English. जो basic चीजें हमको आती है ना कि I am residing in this location and I am so and so, जो छोटी मोटी चीजें हैं, उसके बाद में ना by the time ना you are able to gauge कि सामने वाले को आप में कितना इंटरेस्ट है. तो डायरेक्टली अपफ्रंट होकर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं हिंदी में बोलूं क्या. उसके बाद में ना इट्स ओके टू स्पीक इन अ पर्टिकुलर मैनर. मतलब आप अपने फ्लो में बोलते बोलते ना थोड़ा हिंदी यूज करना स्टार्ट कर दो. अपने फ्लो में बोलते बोलते आप धीरे धीरे जब अपना कंटेंट पर फोकस करने लगोगे ना, आप खुद ये देखोगे कि इंटरव्यूअर आपकी इंग्लिश से ज्यादा ना आपके कंटेंट पे ध्यान दे रहा है. सो इट्स नेसेसरी. और रही बात अगर आपको अपना इंग्लिश इम्प्रोवाइज करना है तो बहुत सिंपल सी चीज है. मैं आपको ना बोलूंगी कि यूट्यूब वीडियोस देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि बुक रीड करो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप जाकर ये सारी चीजें करो, मतलब रीडिंग करो और अपने आपको न्यूज़पेपर पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो. नथिंग डूइंग. सिंपल सी चीज है. रोज अपने लिए 5 sentences लिखो. आई एम गिविंग दिस थिंग, like giving out to the rest of the participants also, those who feel there is a problem.
The only thing you need to do is daily write down 5 sentences जो आप हिंदी में बोलते हो ना उसको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करो बिना किसी को रेफर करे. इससे होगा ये कि आप धीरे धीरे ना उस पर होल्ड लेते जाओगे. और जब ये 5 सेंटेंसेस जब आप इससे उठाकर कहीं से लेकर लिखोगे, उसके बाद में जब आप इम्प्रोवाइज करने लगोगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपको ना लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस आने लगा. जैसे ही लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा. Hope I have answered the question. There's another question from Mr. Salim Ali. I don't shake hands with women while entering the room. The lady normally shakes hand. What should be done according to you? This is absolutely like okay. What happens is when you enter the room na, the very first thing aajkal to when we talk about this COVID and everything, any which ways we don't shake hand. So it's a very normal thing and a very normal gesture. Even if the lady is raising her hand or bringing her hand in front to have a handshake with you, simple सी चीज है कि you can just keep your hand on your heart and just do it, bow it as a respect. जो हम जनरली हम करते हैं, तो आप उतना भी करोगे ना तो सामने वाले को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता है. इट डजंट गो आउट दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग और यू हैव इंसल्टेड दैट पर्सन. दे अंडरस्टैंड इट सूनर और लेटर कि वो ठीक है, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन शेकिंग हैंड्स विद फीमेल. वो मैसेज मिल जाता है उनको. So it's just that you keep your body language turn. आप अगर अपने body language में ये show करोगे ना कि that I am being very distant to females, वो उनको awkward करता है. आपका हाथ उनसे हाथ ना मिलाना उनको बिल्कुल awkward नहीं करता. So it's just a way of how you're managing. आप उनसे comfortably बात कर रहे हो भले ही distance पे खड़े रहकर, that is absolutely okay for the recruiter. Hope I have answered. There's another question from Ms. Saima Rajgoli. I really like the seminar in particular. I liked what ma'am told about the passion. Is it possible to connect with you personally to talk about that? It's because I have similar thoughts and would love to talk to you with regards to that. Thank you so much. Yeah. Feel free to contact me. I have already mentioned my number, my email ID. Feel free to text me at any point of time. We can have a good talk, and I would love to have talk with people with similar mindset. There's an anonymous attendee. His question is, what's your suggestion for Skype interview, as nowadays COVID pandemic, as company conducts Skype interviews? So he needs to say during these pandemic days. So what is your suggestion in order to conduct the interview, Skype interview, perform in front of the interviewer? Thank you for the question. This is really very good because मैं कल ही इस बारे में सोच रही थी. I was just having this particular feeling, and then I was having one interview, like I was conducting an interview online. So I suddenly realized, आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ. ये जो हुआ है ना अभी, when we talk about Skype and Zoom and all these virtual platforms where we are trying to take interviews, आप कभी ना interview देकर देखो, you will feel, the candidate will feel much comfortable sitting in front of their laptop and talking. Trust me, I have seen it on both these sides. Hence I'm telling you this, कि वो जो physical interview होता है ना, जितनी anxiety हमको होती है, क्यों पता है? क्योंकि physically आप बात करो, you are sitting in your own room, you are sitting in your own area with your own family members around, you are sitting with your own comfortable your system. आप उस stressful atmosphere में नहीं हो जहां आपने एक anonymously एक कंपनी में एक बिल्डिंग में एंटर किया, बहुत से ट्रैवल करके हेक्टिक वगैरह करके, हेक्टिक ट्रैवलिंग के बाद आप एक जगह पहुंचते हो एंड देन यू टेक सम ब्रीदिंग. फिर उसके बाद में आप देख रहे हो, अरे मैं अकेला नहीं हूँ, आई हैव 10 अदर पीपल फॉर द इंटरव्यू लाइंड अप, तो मेरे लिए तो यहीं पर कंपटीशन है. फिर वो रूम की एंजाइटी और वो सारा जो इम्पैक्ट आता है ना आप पर, वो सारी चीजें नहीं होती है. तो ट्रस्ट मी, दिस स्काइप इंटरव्यूज आर वे मच बेटर. आप कंफर्टेबली अगर आप दोगे ना इंटरव्यू तो आपको बहुत ज्यादा बेटर साउंड करेगा. होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. Next question is from Miss Alina Sheikh. Being a hijabi, I cannot wear formals. Please tell me, what should I wear then, which looks modest? Thank you for the question. This is wonderful. You know, I'll tell you one thing. Even I don't wear formals. It's like in my lifetime, I have never wore any jeans or something with the Western or the typical formals, Western formals. What we talk about. The very first thing, you are happy about your hijab, so it's good for you. Next thing, need not make it an emphasis कि आप बहुत ज़्यादा अपने हिजाब पर बहुत ज़्यादा focus कर रहे हो. अगर आप let's be very particular. I'm being very gender specific right now, so I would request like the females to listen to it more specifically. If you are wearing, for example, you're wearing those 3/4 coats which are available nowadays, it is okay to wear
like it depends on your work culture, but it is okay to wear your normal suits in that. I do that. I wear my normal suits. It is not necessary I'll wear a jeans below so that it looks very presentable, which I see lot many young girls doing nowadays, and I honestly speaking I don't like that. So it's okay when you are in a hijabi, and if you feel that you're going to carry your hijab even at your workplace particularly, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता है कि आपका कैसा क्या ड्रेसिंग है, आप किस तरीके से रख रहे हो, because ultimately I believe it should be your performance which should be counted. I have been to interviews at lot many places, and I have been in hijab, and that's perfectly fine for me. It is, if you are not picking me up because of my performance and like say rejecting me because of the hijab, that's your problem, not my problem. And to look modest, it is very much necessary that you keep your dressing sense. Even if you remove your hijab, and it is like once you reach your workplace and you keep it simple, it is necessary that you maintain your modesty in your own simple manner. It's not necessary. मुझसे पूछोगे, it's not necessary to go and color yourself in the crowd. Stand beside it. It's absolutely fine. I do that, and that's what I'm saying. If it is possible, I hope that has answered your question. There's an anonymous attendee. His question is, often I've been rejected for the sole purpose of being a fresher. How will I be an experience holder if I'm constantly rejected for being a fresher? Thank you for the question. This is not the problem of one person. This is the problem of all the freshers. मतलब once you get irritated ना, आप यही बोलने लगते हो कि अरे भाई जॉब दोगे नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा कैसे, और आएगा नहीं तो आप मैं एक्सपीरियंस लिखूंगा कैसे सीवी में. इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, पता है, आप है ना जब फ्रेशर हो ना तो इट्स ओके, आपका सीवी सिंपल रखो, यू टॉक अबाउट ओनली योर बेसिक थिंग्स, बट आपके ना कुछ छोटे बड़े अचीवमेंट्स होंगे. आप है ना क्या करो पता है, आपके सीवी में ना आपकी जो स्ट्रेंथ क्वालिटीज होती है ना वो मेंशन करो. प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है फ्रेशर्स के साथ, अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ एक फ्रेशर का, तो मेरे पास उसको पूछने के लिए कुछ नहीं है, 1 से 2 3 क्वेश्चन पूछूंगी एंड दैट्स ऑल. तो पुट अप सम टेक्निकल थिंग्स इन योर सीवी, कुछ ऐसी टर्म्स, जैसे अगर आपने बीकॉम किया है तो आपने अगर टैली वगैरह किया है तो टैली के बारे में मेंशन करो कि आई हैव लर्न टैली, उसका ये वर्जन भी किया है, ERP 9 भी किया है, नेक्स्ट ये सारी चीजें. अगर कंप्यूटर्स किया है तो डोंट जस्ट सिंपली मेंशन दी 5 अल्फाबेट थिंग्स MSCIT, राइट इन द ब्रैकेट ना, आई नो पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो ये चीजें आप उनको मौका दो चीजें पूछने के लिए. हम क्या करते हैं पता है, फ्रेशर का रेज्यूमे 1 पेज का ही होना चाहिए, उस चक्कर में ना वी राइट ओनली द बेसिक थिंग्स which gives me no scope to ask you. क्या पूछूंगी आपको, tell me something about yourself, tell me about your family, and what can you do for me, that's it. मैं और क्या पूछ सकती हूँ आपको. आपका कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी पता चल ही चुका है ना टेलीफोनिक राउंड पे, तभी तो आपको फाइनल राउंड के लिए मतलब इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया है. तो अपने सीवी को, योर सीवी होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेटेज, अपने सीवी को ना थोड़ा और ज्यादा ना ब्रीफ करो, भले ही बहुत ज्यादा एलॉबरेट मत करो, बट चीजें पूछने के लिए. अब आप लिखोगे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, तो मैं आपको पूछूंगी ना, अच्छा आपको पावर पॉइंट आता है, तो पावर पॉइंट में कैसे स्लाइड्स बनाते हैं वो बताओ, तो पता चलेगा ना कि आपने सिर्फ लिखने के लिए लिखा है या आपको एक्चुअली आता है. Hope I have answered the question. Another question from Mr. Mazharul Haq. Any good books, ma'am, for improving soft skills? All right, thank you. For I would suggest go with these 7 effective habits of successful people and all. But मुझसे कभी books मत पूछो, because I don't refer books. I don't suggest books. I mean, sorry to say this, but I believe कि आप books read भी कर लोगे ना, तो वो read करने के बाद ना एक point of time पे आपके दिमाग में imbibe होता है. There is this one thing I'll tell you, when you are talking about anything ना, when you are doing something new, तो आप क्या होता है पता है, 3 चीजें होती है. your complete structure or your complete learning is a process of 3 A's. One is your attendance, which is your physical presence. जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया है और म्यूट पर रखकर चलेगा. दूसरा होता है अटेंशन, जो मेंटल प्रेजेंस होती है कि हाँ सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सुनते हैं. तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, which is all about your psychological presence. तो जब आप ये एब्जॉर्प्शन लेवल पर आने वाले होते हो ना, तो आप बुक रीडिंग करते हो ना, तो बुक रीड करने के लिए, और एक रीडिंग का एक एलिमेंट बताती हूँ. हम है ना रीडिंग क्यों करते पता है, अभी जैसे आपने मुझसे सॉफ्ट स्किल की बुक पूछी, जैसे आप सॉफ्ट स्किल की बुक पूछोगे ना, तो यू विल स्टार्ट रीडिंग दैट बुक विद द आइडिया कि मैंने सजेस्ट किया, तो आप वो बुक रीड करने लगोगे. फिर वो मिडवे में अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगी तो ठीक, नहीं लगी तो यू लीव इट मिडवे. इससे अच्छा ना मेरा सजेशन क्या होगा पता है, स्टार्ट रीडिंग पीपल. समथिंग वेरी यूनिक आई एम टेलिंग यू, मैं खुद करती हूँ ये चीज, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलती जो मैं नहीं करती.
तो मैं खुद करती हुई इंसानों को रीड करो। अब इंसानों को रीड करने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे सामने और मैं आपको ऐसे घूर कर देखने लगूं। कौन सा इंसान कब कैसे बात करता है, कब चिढ़ता है, कब गुस्सा करता है, ये चीजें करो। आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हो तो अगर आप पहले जा चुके हो तो आपने कैसे बिहेव किया। सामने वाला इंसान जो 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ है, या चलो फ्रेशर जो भी है, मिनिमम एक्सपीरियंस है जिसका आपसे ज्यादा है, वो इंसान किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है। वो किसी और का, अगर वो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, उसको किसी ने बीच में बुलाया, उसको अगर फोन कॉल आया तो उसने क्या किया, फोन उठाया, रिसीव किया, आपको एक्सक्यूज मी कहा, या फिर उसने फोन को रिजेक्ट कर दिया एंड आपसे सॉरी कहा कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये हमारे दिमाग में बैठ जाती है। यार वो अगर ये कर सकती है सिटिंग एट दैट साइड ऑफ द इंटरव्यू, then I can do this too when I am with my family. When my mother is talking to me, should I keep my eyes in the phone screen or should I look at her when she's talking to me? I hope that has answered. I know I haven't answered your book names, but I think this was something I could have shared on this answer. For others, like they can also go for Ren and Martin. Ren and Martin has some aspects of soft skills as well. Now, I would ask permission from you, Professor Busha. There are more than 35 questions which are, listed over here. So I'll just take 5 minutes more of your time, since No we problem. have a slot which is about to get over. There's one, Mr. Imran Sheikh. Can I get this PPT, Bushra ma'am, so that if I go for interview, I will just have a look one day before so that I can remember all these points that time? So this probably even I can answer. Yes. We would be sharing the PPT with all the participants, inshallah, post the session. And there's one question, anonymous attendee. Sometimes interviewer asks tricky questions like, will you dug a hole in the ground if we need? What to answer on such questions? There are thank you for this question. This is very beautiful question. There are so many such questions, asking something which is actually, ये जब ऐसे questions होते हैं ना, when they ask you such questions like, will you dig a hole in the ground if I give you a saw and I'll tell you that start digging, or if I ask you to run 100 kilometers or take 100 rounds of the compound and come back and talk to me, they are not asking you for the sake of reason to understand your physical capability. They are just trying to be tricky with you with the element, till what extent are you willing to do this job. So it's not necessary you just go on flattering and saying, yes, you tell me whatever you want me to do, I'll do it and I'll prove myself and I'll come back to you and say, just give me this job. Try to keep it as simple and as very, very natural coming from you, that if it is in my capability, I'll try to give my best. If it is beyond my capability, I'll leave the rest on you to decide. So whenever you feel now, because these questions are very, very general, I'll give you very hidden HR funda. Our interviewer will ask you a tricky questions only when they'll find you good enough for this job. मतलब ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको मैं दे रही हूँ कि वो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस, वो आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस मोस्टली तब पूछते हैं जब वो ना दिमाग में ये डिसीजन नहीं बना पा रहे होते कि आपको सेलेक्ट कर सकें या नहीं कर सकें। मतलब आपका पॉजिटिव लेवल पे चांसेस ज्यादा होता है, मतलब उनको आपको हायर करना है ना, तो फिर और थोड़ा आपको ग्रिल करने लगते हैं ताकि पता चले कि उनका डिसीजन सही जगह जा रहा है या नहीं। So you can be happy if they ask you some kind of a tricky question. Then be natural and be very normal. Need not bluff around saying yes, I'll do it. Yeah, nahi, it's not possible. And never use any negative things. Keep it very simple. Nahi aata hai na, to apologize. Sorry, I cannot answer this question because this is beyond my capability. Keep it simple. But need not go, nahi, I am not going to do this. Don't say this. The moment you say no, people get very affected. If she's saying no right now, she'll say no even later also. Hope I have answered. There's a question from Mr. Muhammad Umar. Assalamu alaikum, ma'am. I'm BE 2018 pass out. Still, I don't have any job. Whenever I attend any interviews, I feel nervous and panic attacks. Can you please help me, ma'am? Thank you. Thank you for the question. Now, this nervousness, I'm going to have a workshop as well in the coming week with regards to nervousness, confidence building, and all sort of things which is going to groom you all together. What we talk about in nervousness, we end up, जैसे आप अगर nervousness की बात करते हो ना, again we talk about the end result. Now, when you go in the interview room ना, हमेशा याद रखो, एक बहुत hidden चीज आपको बता रही हूँ, जो आप बोलने वाले हो, ये एक एलिमेंट है पब्लिक स्पीकिंग, जॉब इंटरव्यू, एग्जाम रूम, हर जगह पर काम आता है। आप जो बोलने वाले हो, आप जो लिखने वाले हो, वो आपके अलावा कोई नहीं जानता। अभी मैं अगर आपका सेशन ले रही हूँ तो मुझे सिर्फ पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ,
अगर मैंने इसमें मैंने रट्टोफाई तो किया नहीं है, बट अगर मैंने कोई पॉइंट मिस भी कर दिया, तो अगर मैंने आपको वो शो नहीं किया तो आपको पता नहीं चला कि मुझसे वो मिस हुआ है। ना ही मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकी, अरे सेकंड पॉइंट तो मिस हो गया, पीछे जाना पड़ेगा, स्लाइड को फिर से रिवाइंड करना पड़ेगा, या फिर आपको अपोलोजाइज करके बोलो सॉरी आई मिस द सेकंड पॉइंट। मैंने आपको बोला नहीं, आपको पता चला नहीं, सिंपल। तो नर्वसनेस का भी वही एक एलिमेंट है, आप दिखाओगे तो लोगों को पता चलेगा आप नर्वस हो। और हम नर्वस क्यों होते पता है? इंटरव्यूअर से पहले ना हम खुद को इवैल्यूएट करने लगते, वी स्टार्ट थिंकिंग कि अरे आई एम नॉट फिट, अरे नहीं मेरा कम इंग्लिश वीक है, मैंने जैसे कहा ना मेरा इंग्लिश वीक है, या अरे नहीं मेरा वो सब्जेक्ट में मार्क्स कम था, मेरा वो सेकंड सेमेस्टर में केटी था, वो रिफ्लेक्ट होगा, वो मेरे से पूछेगा तो क्या बोलूंगा। उसके पूछने तो लेट हिम स्पीक, लेट हिम आस्क यू, इट्स अ सिंपल। जब तक आप इंटरव्यू को एक सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर राउंड जैसे अभी हो रहा है, अभी आपने मुझे आराम से पूछ लिया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया ना, इंटरव्यू इज नथिंग बट अ क्वेश्चन आंसर राउंड। हम उसके साथ इतना वेट लगा देते हैं, इतना वेटेज डाल देते हैं उसके ऊपर, इतना हैवी कर देते हैं कि हम खुद ही नर्वस हो जाते हैं। जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स, टेक इट एज एन एक्सपीरियंस एंड मूव अहेड। इट इज मेंट फॉर यू, इट इज गोइंग टू कम। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप ये नर्वसनेस का वेट अपने दिमाग से निकालोगे ना, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ जॉब वेरी सून। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. Yeah, so it's almost you have answered maximum questions. Thank you so much, Professor Bushra. Now I would be handing over to Mr. Shehzad to end with a qiraat. Thank you so much, Ehsan bhai. Before the end of the session, I see our President Amir Idrisi Saab is here. I would just request him to share a few words and then we'll end the session, inshallah. So, Amir bhai, are you there? जी जी मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ भाई, and thank you very much Professor Bushra for giving your wonderful time and wonderful presentation for all these students. Alhamdulillah, there were more than 150 students in the this workshop or the seminar you can call it as. So it went very well. I hope ये सारे जो students इसमें हैं उन सब के लिए बहुत beneficial रहेगा। AMP का बेसिक मकसद यही है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकें, उनको गाइड कैसे कर सकें, उनकी मेंटोरिंग कैसे कर सकें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं रेंजिंग फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग्स टू स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू जॉब असिस्टेंस। तो आप लोग AMP की वेबसाइट्स देखते रहिए, है ना, उसमें आने वाले जॉब फेयर्स, जॉब ड्राइव्स के बारे में देखते रहिए। इस तरीके की स्पेशलाइज्ड लेक्चर सीरीज हम लोग रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं। लॉकडाउन की वजह से ये ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑफलाइन डिफरेंट कॉलेजेस में हम लोग ये सब करते रहते हैं। तो आप सब लोग ज्वाइन करें और आप सब लोग ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करने की कोशिश करें, ना सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए बल्कि लोगों की मदद करने के लिए भी आगे आएँ। हमने जो सीखा है वो लोगों को सीखने के लिए आगे आएँ, और इस तरीके से जब हम लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे प्रोफेसर बुशरा हैं या हम लोग हैं, हर लेक्चर के साथ हम खुद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वो हमारे लिए भी, जब हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी अपनी मदद होती है। अगर आप सब लोग भी इस तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे चेंजेस लाए जा सकते हैं। वी विल बी डूइंग दिस नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे। इस तरीके के एक सेमिनार हम लोग और ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, स्पेशल लेक्चर्स, स्पेशल टॉपिक्स पे भी, जैसे अभी मैडम बता रही थी नर्वसनेस पे, स्ट्रेस पर भी लेक्चर्स वगैरह। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। जब भी आपको ठीक लगे आप लोग ज्वाइन करें। हमारा एक जो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के लिए वी हैव गॉट आवर वॉलंटियर्स, अराउंड 700+ वॉलंटियर्स आर देयर, जो अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। अगर उनमें से आप किसी से बात करना चाहें तो आप लोग जो है हमारी वेबसाइट पे करियर काउंसलिंग सेल बोल के एक पेज है, उस पर वो नंबर्स वगैरह डाले हुए हैं। तो यू कैन गो सर्च एनी वन ऑफ देम एंड यू कैन कॉल देम और मैसेज देम और व्हाट्सअप देम कि यू नीड सम गाइडेंस। इंशाल्लाह सब के सब लोग आपकी हेल्प के लिए हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे नए चेंजेस कर रहे हैं और नए वॉलंटियर्स जुड़ने वाले हैं। सो दे ऑल आर देयर टू हेल्प यू। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank you so much, Amir bhai, and thank you so much, Professor Bushra. It was a brilliant session overall. A lot of learning to take from this session, how to mentally be prepared for an interview. So I hope everyone who attended this session will take all the learnings and apply them in their lives and life and profession. And I'm very sure that this will help you to grow professionally, inshallah. So we'll be ending this session with a dua. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين
يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you everyone, and we'll be ending this session. Assalamu alaikum.